In your very varied and illustrious career, what do you consider to be your greatest achievement? I think building the cancer hospital, because I had no experience of it. The government had tried and failed to build a specialist cancer hospital in Pakistan, and to build it and to run it, and then to have 75% of the patients treated free without any government help. And and it's been going for 15 years, and it's the biggest charitable institution in Pakistan. I think that I consider my greatest achievement so far. The hospital is funded entirely by charitable donations, and every year the budget goes up. Every year I have more people donate more money. I found in Pakistan, if people trust you, if you're a credible institution, it is one of the most generous countries anywhere in the world. In Pakistan, they give highest per capita in charity compared to any other country. The biggest problem is really health and education is the domain of the government, and we have been very unfortunate in having very poor governance, deteriorating governance, and none worse than the current one, which is corrupt and incompetent. So it's the political class, and along with the military dictators, that have really brought Pakistan to this state. Otherwise, in 60s, when I was growing up, Pakistan had very good institutions. It's unique because it's a specialist cancer hospital anywhere in the world. To set it up, because it's very capital intensive, and then to run it, it has the highest running costs. And then to have a hospital where 75% patients get free treatment, it requires a lot of money. I was lucky because I was known everywhere in Pakistan. Cricket is the biggest sport, and I was the biggest name. So I used that to collect this money. Others do not have that sort of profile. But eventually, it's the government. The government's responsibility is to provide people with the basic needs of health, education, employment, justice. Who do you think are the greatest cricketers you faced in your sporting career? The greatest batsman is very easy, was Vivian Richards. I thought he was, at a time of a lot of great players, he just stood up head and shoulders above everyone else. He was a genius. Bowlers, I also played at a time when there were some of the fastest bowlers in the world. But three stand out. One was Michael Holding, who was the fastest. Jeff Thompson was also the fastest, but in terms of skill, Dennis Lillee and Malcolm Marshall and Michael Holding were the three outstanding. Aren't you being a bit self-effacing about yourself? Obviously I can't talk about myself, but I would categorize myself more as an all-rounder. But these were, as pure fast bowlers, these three stood out. Intelligence Squared is having an event on the notion and on the idea of sportsmanship soon. Is the idea of sportsmanship a colonial myth, do you think, or did it play an important role in your own cricketing career? I think people sort of seem to get sportsmanship wrong, in the sense that they think it's, brinksmanship, or where people are trying to get advantage their way in cutthroat competition. People sort of push the boundaries. But for me, the greatest lesson I learned from sport was this ability to never give up and keep fighting fighting to the last ball. I think if once you have that sort of attitude, whatever you do in life, and whatever I have done, sort of taken big challenges, politics is probably the biggest challenge. But this lesson you learn, that you only lose when you give up. And if you don't give up, no one can defeat you. So it's an invaluable lesson that sport teaches you. I think when it's pre-planned sledging, I'm against it.
But when in the heat of the moment emotions come out, it's within limits. I think that's part of the game. But I do not agree with where players apparently plan to say awful things to rile up other players. I do not agree with that. Do the Taliban play cricket? And could cricket be the solution to Pakistan's problems if they could be persuaded to do so? The Taliban, first of all, what are the Taliban? Taliban are basically people in Pakistan's tribal area, the Pashtun tribes, who have risen up because Pakistan Army did military operations. And military operations where they use bombs, artillery, helicopter gunships, F-16s on villages. Exactly what the Americans did in Afghanistan. And it's a reaction, the Pashtun population in reaction. A section of them rose up. And because it was American versus Taliban, everyone who stood up against the Americans or the Pakistan Army called themselves Taliban. The solution is not cricket. The solution is to have a sensible way of dealing with this thing, which is not bombing them. The more bombing, the more Taliban. The more the reaction, when people react to this so-called collateral damage, when the villages are bombed, they go and join the only party that is standing up to the Americans or the Pakistan Army, which is the Taliban. But this is not an ideological enemy. It is a political enemy. The solution lies in politics, i.e. an exit strategy from Afghanistan, rather than thinking that some sort of moderate Islam or distributing some welfare or goods or services would help. Until there's occupation in Afghanistan, this will not end. In fact, it will keep growing. There were no Taliban in Pakistan. Until the Pakistan Army went in 2004, we had no militant Taliban in Pakistan. The military operations, 2 years of military operation, 2 years of drone attacks on villages, killing innocent people, because the majority of people killed were being innocent. It was these drone attacks and military operations that created the Pakistan Taliban. And every operation has increased their strength, hasn't decreased it. So today, when we had no Taliban, today we have 30 Taliban groups operating in Pakistan. There were 500 blasts in Pakistan. It's an insane policy. It's an immoral policy. The thing to do is to talk to the Taliban and remove the tribal people from the actual hardline ideologues, who are trying to impose some system, which is a small minority. Majority are our own tribal people who picked up the gun, and we push them towards the Taliban. अगस्त 1947 वो दिन जब इंसानों के एक ग्रोह ने अपनी खाक आसूदा तमन्नाओं को तौकीर देने के लिए तवील जद्दोजहद के बाद एक अलग रियासत हासिल की थी। तमन्ना ये थी कि उनका इस्तेसाल महज मजहब की बुनियाद पर ना हो, उन्हें वसाइल में उनकी सलाहियतों के मुताबिक हिस्सा मिले, उन पर जिंदगी की सारी नेमतों के दरवाजे वहाँ हों, कोई जाबिर रहे ना जुल्म हो। लेकिन ये सारी खाक आसूदा तमन्नाएं नजरे खाक ही रही। किसी ने रोटी कपड़ा और मकान की दिलकश सदा लगाई, लोग इसके साथ हो लिए। किसी ने कशकोल तोड़ने और जिंदगी आसान करने का ख्वाब दिखाया, लोग उसे चाह लिए, लेकिन कोई फर्क ना आया।
मालो ज़र और वसाइल पर कब्जा जबरदस्तों का ही रहा, जेरे दस्त और बेतौकीर हुए। आज भी कुछ नहीं बदला। एक तरफ बड़े बड़े जागीरदारों की जागीरें, किसी तरफ सनतकारों के महलों की ऊंची फसीलें, कहीं सरमायादारों की इर्तिकाज़े दौलत की दलीलें। राहबरों की हौसला देती दावों से भरी तकरीरें और इन सभों में मसलती झुलसती सिसकती गरीब की सब सबीलें कि जो चिल्ला के रब से गिला कर रही हैं। तू कादिर व आदिल है मगर तेरे जहां में है तल्ख बहुत बंदाए मजदूर के औकात। तरक्की करते सब अच्छा होने के दावे हर सुबह अखबारात की जीनत बनते हैं, हर शाम टीवी चैनल से नशर होते हैं, लेकिन गरीब पाकिस्तानियों खसूसन दिहाड़ीदार मजदूरों के हालात क्या हैं और वो इन दावों का पोल क्या खोलते हैं। बिस्मिल्लाह। अभी सुबह का सूरज मुकम्मल तौर पे तलू नहीं हुआ, मगर हम देख रहे हैं कि इस रात के घुप अंधेरे में कुछ लोग हैं जो पूरी रात मेहनत मजदूरी करते रहे हैं, सफाई कर रहे हैं हमारे पीछे। इनसे बात करते हैं, ये कब तक सफाई करते रहते हैं, किस टाइम पे घर जाते हैं, फिर नेक्स्ट डे किस टाइम पे शुरू करते हैं और कितना कमा लेते हैं दिन का। अस्सलाम वालेकुम। सुबह 5 बजे से लेके दोपहर 2 बजे तक झाड़ू लगाता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो हमारा ये कोई इंतज़ाम नहीं है। वो देखो सुबह 5 बजे क्या है, सर्दी में हमारे हाथ डर रहे हैं और कोई इंतज़ाम नहीं है हमारा। कितना कमा लेते हो? 6-7 हज़ार रुपया महीने का? जी भाई। और उससे घर में कितने लोग हैं? घर में मेरी 2 बच्चियाँ हैं, एक मेरी बीवी है, किराए पे हम रहते हैं। कोई इंतज़ाम नहीं है हमारा, कोई मुस्तकबिल नहीं। चीनी इतनी महंगी है, आटा इतना महंगा है, हम कुछ खा नहीं सकते अच्छा, कुछ पहन नहीं सकते अच्छा, किसी के साथ मिल नहीं सकते अच्छा। मुझे बताओ, बेटियों को पढ़ा रहे हो? हाँ जी, बेटियों को मैं पढ़ा रहा हूँ। तो गुजारा किस तरह होता है एक महीने का? बीवी को कितने देते हो? मैं तो कुछ भी नहीं रखता, सब मैं अपनी बीवी को दे देता हूँ। तो कुछ नहीं बचता ही नहीं, कुछ किसी से मांग के गुजारा करते हैं। इस हुकूमत में तो जो हम कमाते हैं वो ही बहुत मुश्किल बचता है। चीनी इतनी महंगी है, 120 रुपए किलो चीनी है। आटा इतना महंगा, 700 का तोड़ा आटे का है। तो गरीब आदमी 1000 रुपया जब लेके जाता है ना दुकान पे, तो उसको कुछ नहीं मिलता वापस। तो ये सुबह 5 बजे से लेकर दोपहर तक आप झाड़ू देते हैं? कौन कौन से इलाके में? ये MM आलम रोड पे, हुसैन चौक से लेके लिबर्टी गोल चक्कर से लेके। और फिर 2 बजे के बाद क्या करते हैं? 2 बजे के बाद मैं प्राइवेट काम करता हूँ। एक कोठी है, समीना खावर उसका नाम है, मैं उधर काम करता हूँ। उधर से कितने कमा लेते हो? उधर से मुझे 1000 रुपया मिलता है। सो कुल टोटल कोई घर 8000 लेके जाते हो? हाँ जी, 8000 ले। उनसे भी बात करते हैं। इधर भी एक बाबा जी मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम। सुबह 5 बजे से लेकर 7 बजे तक मैंने स्कूल तैयार देना है। सुबह शाम? हाँ जी, सुबह के टाइम। तो यानी सुबह के 2 घंटे लगाते हैं आप? 2-2.5 घंटे मेरे लग जाते हैं। 2500 रुपया देते हैं, वही काम है मेरा बस। 2500 रुपये। और उसके बाद पूरा दिन और क्या करते हैं? और कुछ नहीं है, जो मिलता है काम करते हैं, नहीं मिलता कुछ नहीं है। गुजारा हो जाता है? कुछ नहीं, गुजारा कैसे होता है आप समझदार हैं। क्या मुश्किल आते हैं? मुश्किल यही है कि कुछ भी नहीं है हमारे पास, बस गुजारा कैसे होगा। महंगाई बहुत है और क्या बताएं, कोई मार रही है हमें, बच्चों को भी है, हमको भी। बच्चों की तालीम का नहीं सोचा कभी? पैसे नहीं है, कैसे तालीम करेंगे। तो वो क्या करते हैं पूरे दिन? वो भी ऐसे बस कोई थोड़ा बहुत काम होता है जो हमारे गरीब लोगों का होता है, और क्या है करते हैं, बस थोड़ा बहुत शाम को खाते हैं, सो जाते। कभी भूखे सोए रात को? गरीब आदमी भूखा ही सोएगा और क्या करेगा। भी ड्यूटी शुरू कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं? ये खत्म चल रहे हैं। अच्छा, ड्यूटी शुरू हो रही है अभी? अभी तो सूरज भी नहीं निकला। बस 6 बजे बदली होती है। अच्छा, सही है। 6 to 6। अच्छा, 12 घंटे सीधा? जी, 12 घंटे। कितने कमा लेते हैं आप बाबा जी महीने? कमाते हैं सर 6, मतलब 12 आदमी खाने वाले 6,000 रुपया लबना। घर में कोई कमाने वाला नहीं, एक सिर्फ मैं कमाने वाला हूँ। कोई मुझसे एक चौनी की एड नहीं है किसी से।
इतना ज्यादा बोझ और जिम्मेदारी। जी फिर मेरा मकसद है भाई हिसाब ला लो वे बच्चियां नूं भी पढ़ाना। ए जमाना जड़ा वक्त आ गया इस वेले बच्चा मेरा 13वीं गुजरात पढ़ रहा, उसने 1500 रुपया महीने की फीस है। 2-2 साल तो बाद अपने कपड़े नसीबा च नहीं होने। मतलब बच्चियां ने रिक्वायरमेंट पूरी करनी हैगी, आपो भावें पैरों ते नंगे टिके रहोगे। इस हुकूमत ना तो मैनू इस चुआनी ना मतलब मैं ना समझना फायदा। ये हुकूमत खुद भुखी हैगी। जे एक बंदे को 8 बंदे घरें ने तो 4 मोबाइल हैं तो 6-7 रुपये जड़े सारी जरदारी ने मतलब खाते भी जा रहे हैं। कोई हुकूमत ना काम कर, उन्होंने तनख्वाह नहीं कमी हैगी। असी मतलब भीख मंग मतलब गरीबी हालात अपनी मतलब गुजारा कर रहे, मतलब वक्त पास करने पे तो जरदारी साहब ने मतलब जरा ना तनख्वाह तू लावे मतलब जरा पैसा सारा जरदारी ने कौन भी जा रहा। ये कोई हुकूमत ना कोई मकसद नहीं। और 120 रुपये मतलब इस वक्त चीनी सानू कश्मीर विच मिल रही है। 120 रुपये किलो चीनी मिल रही है। किसरा वक्त पास कर साढ़े तो मर जाने ना मकाम है सानू तो मतलब वो आने मतलब हिंदुस्तान है तो पाकिस्तान है। मैं ना इंडिया ही सर जेडे इस वेले महाजर लोग कश्मीर के रहने वाले 12 रुपये किलो चीनी इंडिया च बिकनी है। तो पाकिस्तान सिर्फ आजाद वास्ता बनया वा, सानू आजादी कर रहा तो मतलब भुखा कोई ना रहे, सारे मारी जान एक दफा। जेडे अमीर हैं वो तो अमीर हैं, गरीब तो गरीब ही रह गया। उसमें एक बंदे की इस वेला मार छोड़ना तो कुत्ते की मार छोड़ना एक बराबर हो गया। मियाँ साहब ने पहला मतलब कोई 6 महीने इधर 2 रुपये रोटी रखी हैगी तो हूँ वो मतलब वो 5 रुपये सानू मतलब मीरपुर शहर के विच मिलनी हैगी पई तो 5 रुपये इत्थे मिलनी हैगी पई। सब ड्रामे बने होंगे मतलब सर गौरमेंट ने पैसे नू मतलब सारे लुटाई कर रहे हैं। गौरमेंट भुखी, गौरमेंट नू भुखिया कर रहे हैं। जेड़ा भी आना वो आना खजाना खाली है। गौरमेंट नू भुखिया कर रहे हैं तो अपने आप नू मतलब जड़ा ना मजबूत कर रहे हैं। शुक्रिया बाबू जी। इधर आते हैं कुछ मजदूर इधर भी हैं जो रात के बीच में काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मोहम्मद असलम। और क्या करते हो? मजदूरी ये तगारी चाहता है। कितने घंटे करते हो? 12 घंटे ड्यूटी करता है रोज के। कब शुरू होती है कब खत्म होती है? 7:30 से 7:30। शाम 7:30 से सुबह 7:30। हाँ कितने कमा लेते हो? क्या दिहाड़ी? 315 रुपये दिहाड़ी देते हैं रोज की। हाँ ड्यूटी ढेर है आपकी जो बेरोजगारी की वजह से कमा दे पाए। आंखें भी सुर्ख हुई नहीं है, बीमार हो? हाँ। क्या मसला है? ये जगारे की वजह से जगारा कट दे मसला है। जिला लोधरा दे रहने वाले तहसील दुनियापुर है साडे उतों दे आए असा ही रोजी के पीछे इतना सफर किया है। बच्चे भुखे मरते ने बच्चा की वजह भाई बाहर प्रदेश मरले वजह कमान आए वजह रोजी की वजह इंसान के आखिर कोई चीज़ खा ही लेता है। तकरीबन 150 रुपया खर्चा आ जाता है, 150 रुपया बचता है। फिर आखिर महंगाई को देखो, चीनी किलो कितना पड़ती है, घी कितना का पड़ता है। ये मसला है। हम क्या गरीब किधर जाए, क्या काम करे? कौन जिम्मेदार है ऐसी सूरत हाल का? ये जो सरवरा है वही जिम्मेदार है। इमाम का ख्याल करना चाहिए। गरीब का ना कोई तहफ़्फ़ुज़ है ना कोई उसका एहसास है। हम आवाम पाकिस्तान की है। मेरी 6000 रुपये तनख्वाह है। 6000 से मेरे 8 बच्चे हैं। 8 बच्चे, एक बीवी है, मैं हूँ। क्या क्या करेंगे हम लोग? 190 रुपये 85 रुपये 90 रुपये हमें चीनी मिल रही है। तो क्या हम चीनी लेंगे, घी लेंगे, आटा लेंगे? आटा 20 किलो मिल रहा है 580 रुपये का। अब क्या करेंगे जी? हम तो बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं। तो हम तो ये दुआ करते हैं कि खुदा हमें मौत क्यों नहीं देती। इसलिए हम लोग आपने इस वक्त तक इतना कुछ देखा है। आप क्या रोके? 1 मिनट रोकना, 1 मिनट रोकना। हाँ जी। अच्छा, आपकी बस आगे मेरे साथ चलते हुए बात कर लें। तो किधर जा रहे हैं अभी आप? मैं जा रहा हूँ जी जोधपुर में। और इसलिए कि मैं नौकरी यहाँ पे करता हूँ। अच्छा। और तनख्वाहें बहुत कम है। बराए मेहरबानी। आपने तो उम्र में बहुत देखा होगा। अपना मुझे ये बताएं कि सबसे मुश्किल वक्त कौन सा काटा है? ये से इस हुकूमत में काट रहे हैं। इससे ज्यादा मुश्किल वक्त कभी नहीं काटा? नहीं काटा। इससे पहले मुश्किल वक्त नहीं आया। अस्सलाम वालेकुम। आपसे भी जल्दी से पूछना चाहती हूँ, आप इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हैं सारे? हम ड्यूटी पे जा रहे हैं अपने पे। कितने कमा लेते हो महीने के? महीने के 10,000। आप? इतनी ही 10,000। आप भाई? 10,000। सारे महीने के 10,000 तक कमा लेते? आप
7,000। मैं आज जानने की हम कोशिश कर रहे हैं कि गुजारा होता किस तरह है महीने में बहुत मुश्किल है आपके। गुजारा। अगर 4-5 बच्चे हैं तो फिर बहुत मुश्किल है गुजारा इसमें। इस महंगाई में गुजारते हैं ना, कम में गुजारते हैं, मजबूरी से गुजारते हैं। जिस टाइम नहीं होता है नहीं खाते हैं, क्या करेंगे, किसको बताएंगे? हमारा कौन है? हमारे जो मुल्क के सरबराह हैं वो हमारा फायदा सोचते हैं? नहीं सोचते, खुद का सोचते हैं। जो पैसा हर चीज में टैक्स है, हर चीज में टैक्स। जब सदर का टैक्स होगा तो आवाम क्या करेगी? मुझे ये बताएं, आप 7,000 कमाते हैं। हाँ जी। आप कभी सोचते हैं कि यार मैं 7,000 में इधर बैठ के पूरा घर और अपनी दुनिया चलाने की कोशिश कर रहा हूँ और ये बड़े बड़े बंगलों और महलात में रहने वाले लोग? काम बहुत मुश्किल है। 7,000 में अमीर और गरीब में कितना फर्क हो गया पाकिस्तान में? बहुत ज्यादा। कितना? क्या जैसे आसमान और जमीन का फर्क ऐसे ही है। नुमाया होता है, पता लगता है? जी बिल्कुल। महसूस होता है? बिल्कुल महसूस होता है, क्यों नहीं होता है। किन चीजों से महसूस होता है? कपड़े चीड़े से, रहायश से, सब चीज से महसूस होता है। हम लोग सब्जी खरीदने के लिए जाते हैं तो पता करते हैं पहले भी इसका रेट क्या है। अमीर जाता है इतनी तोड़ दो, बुड्डी में रख देता है, पैसे दो जी। गुस्सा चढ़ता है? गुस्सा तो आता है ना हमें भी, लेकिन जो हमारे असेंबली वाले हैं ना, या उसे बड़े बड़े ये झूठे वादे करते हैं सबके साथ। भावी वजीर आला तो भावी वजीर आजम है, सब झूठे वादे करके आ जाने घर में। क्या है, पूछता है किसी को? अमीरों के बच्चे सेब खाते हैं, फ्रूट खाते हैं, हमारे बच्चों को नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? हमारी तनख्वाहें थोड़ी हैं, हम कम है, हमारी तनख्वाहें, हम गुजारा नहीं कर सकते हैं। हमारे बच्चे कुछ नहीं खाते हैं, सिर्फ रोटी खाते हैं। वो भी रोटी बड़ी मुश्किल से हम लोग गुजारा करते हैं। रोटी मिलेगी तो चाय नहीं है, चाय नहीं है, चाय मिलेगी तो तरकारी नहीं है, ऐसे गुजारा कर रहे हैं। और मैं अफसोस करता हूँ पूरी जिंदगी में कि हमने ये पहला वाक़या देखा है। अजूब का दौर था, 9 रुपए मन कणक थी, 9 रुपए की मन कणक थी और 3.25 रुपए, 3.5 रुपए असली घी मिलता था 1 किलो। लेकिन अब दौर कहाँ है? ये हमारे बादशाह हैं, ये हमारे सदर हैं। ऐसे सदरों को तो खुदा दूर ले जाए आवाम से। हम ऐसे, हमें मुल्क के सदर सरबराह नहीं चाहिए। चाहे हमें कोई गोली मार दो, चाहे कुछ भी कर दो, अगर सच बोलने वाला ज्यादा दिन जिंदा पाकिस्तान में नहीं रहता। ये बाबा को जो इतना हम गुस्सा देख रहे हैं कि आप सबके दिलों में ये गुस्सा है? हाँ? बिल्कुल ऐसा है, इसी तरह का? हाँ जी, गुस्सा बहुत है। क्या सोचते हो? और तड़प किस बात पे होती है? अपने मासूम बच्चे की शक्ल देख, बच्चों की शक्ल देखकर तड़प होती है? हाँ जी। मेरी 2 बच्ची हैं। हाँ? मैं उन्हें तनख्वाह बड़ी मुश्किल से किसी को फड़ा के तो मैं गुजारा करता हूँ, और वसाइल आई नहीं पढ़ा मैं सकते। सिक्योरिटी गार्ड हूँ। आप किधर जा रही हैं? जी मैं जना में जा रही हूँ। अच्छा, अस्पताल? जी। खैरियत काम करती है? हाँ जी, मैं काम करती हूँ। आप कितने कमा लेती हैं उधर से? मैं जी 6,000 में देते हैं। 6,000। और कितने बच्चे हैं आपके? 5 बच्चे हैं। और जरूरत की वजह से बाहर निकली हैं? हाँ जी, जरूरत की वजह से निकले। 6,000 रुपया तो बत्ती का बिल आ जाता है। चीनी है, आटा, जो भी चीज महंगी है। जो पत्ती नहीं है तो चीनी नहीं है, जो चीनी है तो पत्ती नहीं है, जो आटा नहीं है, कभी घी नहीं है। घी भी तो इतना महंगा कर दिया, हर चीज महंगी है, तो क्या करें जी फिर